Good morning to everyone. Uh, this is the subject which I will be taking in this semester. As you all know that financial accounting, or you can call it accountancy and financial management, is was there from the beginning, from semester 1 till semester 6, and you must have experienced that each year the level becomes advanced. The topics from basic to from every year FA is getting advanced. So this semester, last semester, you have some topics related to company accounts. So this semester also you have some topics related to company accounts. So now let us discuss the syllabus for this semester. Let me start with the slideshow. So let us discuss the syllabus for the subject. The first chapter what you all have in this semester is amalgamation of companies. Amalgamation of companies. You have already done amalgamation in the second year, third semester. So you are aware of amalgamation. Amalgamation means what? When two or more of the companies of the firms come together, when two businesses come together and form a third new firm is known as amalgamation. So here we have amalgamation of companies. तो यहाँ पे क्या रहेगा? दो कंपनीज रहेंगे जो सेम लाइन ऑफ बिजनेस करते रहेंगे. They will decide to close their existing business and start a third new company, that is known as amalgamation. So amalgamation of companies is similar to conversion of firm into a limited company. क्योंकि यहाँ पे whenever there is a amalgamation means there is a sale of business. When there is amalgamation means there is a sale of business. When there is a sale of business, there is purchase consideration. You have to calculate purchase consideration. So purchase consideration, you know what is purchase consideration? Purchase consideration is the value you receive for selling your business. तो यहाँ पे बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस परचेज हो रहा है, तो नया कंपनी ओल्ड कंपनी को परचेज कंसिडरेशन पे करेगी. तो परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के मेथड्स है जो आपने कन्वर्जन में देखा है, नेट एसेट मेथड. लास्ट ईयर अमालगमेशन में you had only net asset method, but this year you have net asset method, you have I'm sorry, you have lump sum method, you have net payment method. Now नेट असेट मेथड मतलब क्या? रिवाइज वैल्यू ऑफ असेट्स दिया रहेगा, उसमें से टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी से माइनस करेंगे रिवाइज वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी, उसको बोलते हैं नेट एसेट मेथड. फिर कन्वर्जन मेथड, सॉरी, उसके बाद लमसम मेथड मतलब क्या? The new value of the PC, the value of the PC will be given in the question. आपको डायरेक्टली लिखना है, पीसी का वैल्यू डायरेक्ट दिया रहेगा क्वेश्चन में. इस लमसम मेथड. नेट पेमेंट मेथड मतलब क्या? द पीस वैल्यू ऑफ द पीसी will be given by way of payment. मतलब पीसी किसको मिलता है? ओनर्स को. ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स में कितने टाइप है? इक्विटी और प्रेफरेंस. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या, कैसे पे करेंगे? पेमेंट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. दैट विल बी परचेज कंसिडरेशन बाय पेमेंट मेथड. सो पीसी के तीन वेज है, और दिस इज सिमिलर टू व्हाट यू हैव डन इन योर सेकेंड ईयर. कन्वर्जन भी सिमिलर था, अमालगमेशन भी सिमिलर था, तो ये ज्यादा सेम रहेगा बाय कन्वर्जन. So you have this chapter which is little bit repetition of what you have done in your
second year the advanced level, because that was related to firm, this is related to company. तो यहाँ पे आपको लेजर अकाउंट्स रहेगा, फिर न्यू कंपनी का बैलेंस शीट, पर आप न्यू कंपनी का बैलेंस शीट अभी क्योंकि कंपनी है तो शेड्यूल 3 के हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा. असेट इक्विटी लाइबिलिटीज एंड असेट, जैसे आप प्रीवियस सेमिस्टर से बैलेंस शीट बना रहे हो, सेम पैटर्न से आपको इस सेमिस्टर में अमालगमेशन ऑफ कंपनीज में बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. इसके बाद we have the second chapter. So first chapter is little bit what you have already done in your last semester, last year I should say, third semester. तो थोड़ा बहुत याद तो नहीं रहेगा आप लोगों को, बट जब हम लोग ये स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा याद आना स्टार्ट होगा. Next you have liquidation of companies. So what do you mean by liquidation of companies? When the company is liquidated means the company जब बंद होने वाला है, why the company is getting liquidated? Maybe it is not able to fulfill its liabilities. तो वो suppose the company is becoming bankrupt या कंपनी के पास sufficient funds अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी को लिक्विडेट करने का, सेल करने का डिसीजन लिया जाता है. तो वो सिचुएशन में दिस इज लिटिल बिट रिलेटेड टू पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन. तो liquidation of companies is little bit related to piecemeal distribution, but piecemeal distribution is related to firm, but liquidation is related to companies. तो जैसे आपने अमालगमेशन ऑफ फर्म, आई थिंक आपने अमालगमेशन किया था in your second year. This year you have amalgamation of companies, advanced version. तो सेम वे आपने पीसमील किया था लास्ट ईयर में. दिस ईयर यू हैव लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज. तो जब कंपनी को बंद करना है, बिकॉज द कंपनी इज नॉट, देयर मे बी डिफरेंट रीजंस फॉर लिक्विडेशन, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी किसे अपॉइंट करती है? अ स्पेशल पर्सन नोन एज द लिक्विडेटर. Though he will be in charge to sell all the assets and discharge all the liabilities. But liabilities को हम जब repay करते हैं तो एक order of payment होता है. सबसे पहले हम preferential liabilities को पे करेंगे, तो वो वे से लास्ट में, सबसे लास्ट में ओनर्स को मिलता है, और ओनर्स में भी सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर सबको पे करने के बाद अगर कोई पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा. तो दैट इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज. देन वी हैव आवर थर्ड चैप्टर, underwriting of share. So whenever the company wants to sell share in the market, wants to sell, that is, you may say initial public offer, that is the first time when the company distributes shares in the market. तो कंपनी का रेप्यूटेशन, कंपनी नया है फॉर एग्जांपल, तो कंपनी को ज्यादा कोई जानता नहीं है, तो कंपनी कैसे ये शेयर, कंपनी बिजनेस में ध्यान देगा या शेयर सेल करने में? पहली बार शेयर इशू रहने दो या बाद में सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, कभी भी शेयर इशू रहने दो मार्केट में. बट कंपनी हैज वन ऑप्शन. अपने शेयर्स को सेल करने के लिए कंपनी कैन अपॉइंट अ स्पेशल पर्सन नोन एज द अंडरराइटर. सो अंडरराइटर इज इट मे बी अ इंडिविजुअल और इट मे बी अ फर्म. So underwriter may be an individual person or may be a company who undertakes the responsibility to sell your company's share
तो अंडरराइटर कौन है? अंडरराइटर एक इंडिविजुअल हो सकता है, अंडरराइटर एक कंपनी हो सकता है, पर अंडरराइटर क्या गारंटी करता है कि वो आपका मिनिमम शेयर सेल करके देगा। तो विदाउट अंडरराइटर आप शेयर सेल नहीं कर सकते, बिकॉज आप बिजनेस करने के लिए हो, आप शेयर सेल करने के लिए नहीं हो। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलिंग द शेयर you give to the underwriter, तो underwriter will not sell the shares for free, वो कमीशन चार्ज करेगा। तो ये पूरा चैप्टर अंडरराइटिंग ऑफ शेयर इज बेस्ड ऑन द अंडरराइटर, हाउ ही विल सेल द शेयर्स, हाउ मच कमीशन एंड ऑल दैट वी विल सी इन दिस चैप्टर underwriting of share. Then we have our fourth chapter, accounting of limited liability partnership. Now you all are aware of partnership business. Partnership business means what? When two or more than two persons come together to conduct a business. So partnership business is undertaken by the Partnership Act, Indian Partnership Act 1932, बराबर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पार्टनरशिप बिजनेस चलता है, पार्टनरशिप बिजनेस चलता है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है? जो लाइबिलिटी होता है पार्टनर्स का, वो लिमिटेड होता है या अनलिमिटेड होता है? टेल मी। पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में आपने 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में बहुत, आप यू ऑल हैव स्टडीड दिस। सो टेल मी, पार्टनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है या अनलिमिटेड होता है? पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो दिस is not related to, this chapter is not related to Partnership Act 1932. This is related to Limited Liability Partnership Act 2008. तो इसके हिसाब से हम ये चैप्टर में क्या होता है, एज अ नेम सजेस्ट, the liability of the partnership is limited. ये जो लाइबिलिटी है ये पार्टनर्स का, ये लिमिटेड है। तो ये जो पार्टनरशिप है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी। तो ये क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अ मिक्सचर ऑफ टू बिजनेसेस, दैट इज कंपनी एंड पार्टनरशिप। हमने देखा कंपनी में शेयर होल्डर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है टू द एक्सटेंड ऑफ द शेयर्स। तो ये जो पार्टनरशिप है, इसको कंपनी का भी, जो कंपनी है, जो कंपनी बिजनेस है, उसका भी इसमें कुछ फीचर्स है और पार्टनरशिप का भी कुछ फीचर्स है। तो इसका अकाउंटिंग वी विल सी व्हेन वी विल बी कमिंग टू दिस चैप्टर। एंड लास्टली the chapter called accounting of transactions of foreign currency. So all together you have 5 chapters in this semester. So जो सबसे पहला चैप्टर है ना, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, दैट इज ओनली अ लेंथी चैप्टर, थोड़ा बहुत उसके सम्स बहुत लेंथी है, बट बाकी के सारे चैप्टर्स आर वेरी स्मॉल स्मॉल। इसके जो सम्स है वो ज्यादा लेंथी नहीं है, छोटे छोटे सम्स है। तो सिर्फ एक चैप्टर है जिसके सम्स बहुत लेंथी है, दैट इज अमालगमेशन। एंड यू ऑल हैव द आइडिया ऑफ अमालगमेशन इन योर सेकेंड ईयर ऑल्सो। आपको पता ही होगा कि अमालगमेशन इज अ लेंथी चैप्टर। So when we are talking about amalgamation of companies, that time also it is lengthy. Now last chapter, let us come to the last chapter, accounting of transactions of foreign currency. Now what do you mean by foreign currency? तो मैं एक और बात बताना, I want to tell you that ये चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी। ये चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। सो दिस विल बी अवर, ये मैं आगे अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो इसके बारे में मैं आपको आगे ही बताऊंगी कि ये चैप्टर क्या है, बिकॉज वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर टुडे। नाउ लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे अगर आपका एग्जाम
ऑफलाइन रहेगा, तो ऑफलाइन रहेगा जिसका चांसेस इस सेमेस्टर में कम है, बट वी नेवर नो मुंबई यूनिवर्सिटी क्या डिसीजन ले ले। तो अगर मुंबई यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा सेमेस्टर 6, तो दैट विल बी ऑफलाइन पे, दैट विल बी that will be a offline examination. And this semester you do not have any theory chapter, you have all practical chapters. So what will be the paper pattern if it will be a offline exam? So offline exam है तो आपका पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, जैसे लास्ट ईयर था, पहला क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 20 मार्क्स के लिए रहेगा, जिसमें 2 क्वेश्चंस रहेंगे, सब क्वेश्चंस रहेंगे ए एंड बी, जिसमें 12 क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस का मार्क्स मिलेगा। अगर पूरा 12 भी करेक्ट है तो भी आपको 10 मार्क्स ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स विदाउट ऑप्शंस। एंड क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा, जिसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन रहेगा। एंड ये 20 मार्क्स के लिए पूरा एक क्वेश्चन दे सकते हैं, या 10 मार्क्स का छोटा छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थ्योरी क्वेश्चन रहेगा। वैसे तो आपको कोई थ्योरी चैप्टर नहीं है, तो प्रैक्टिकल चैप्टर्स में से ही कोई थ्योरी क्वेश्चंस पूछेंगे। या तो 2 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, या तो उसके ऑप्शन में 6 शॉर्ट नोट्स दिया रहेगा, उसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 5 मार्क्स ईच, टोटल विल बी 20। तो ऐसा करके आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। बट ये पेपर तभी हो सकता है इफ इट्स अ मल्टीपल, if it's a offline exam, otherwise you will have the मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे आपने अभी एग्जाम दिया 50 क्वेश्चंस रहेगा, उसमें से आपको कोई भी 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो आपने ऑलरेडी एग्जाम दे दिया है, वैसा भी हो सकता है। या यूनिवर्सिटी में कम अप विद अ न्यू आइडिया, तो उनको कुछ नया लेना है तो वो भी कर सकते हैं। ऑल डिपेंड्स, बिकॉज यू ऑल आर, भले आप नारायण गुरु कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, लेकिन यू ऑल आर एफिलिएटेड, नारायण गुरु इज एफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी, तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू आर स्टूडेंट्स ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी। तो जो भी रूल्स रहेगा वो वहां से जो आएगा उसके हिसाब से हमें फंक्शन करना है। तो एज ऑफ नाउ तो ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना चाहिए, बट इफ देयर इज एनी अदर न्यू सर्क्यूलर कमिंग, तो हमें अकॉर्डिंगली एक्ट करना पड़ेगा। सो आई मे से 50-50 चांसेस ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, but you may also say 60-40, 60% chances of online and 40% chances of offline exam, because last semester online हुआ तो अभी भी ज्यादा chances है कि online exam हो। तो इसके बाद now I will come to our first chapter which we will be taking for this semester, known as accounting of transactions of foreign currency. Accounting of transaction of foreign currency. So now what do you mean by a transaction? Transaction means it may be some purchase or sale. Now, when you are doing a transaction where foreign currency is involved, means this, in this chapter, what you will see that there is a transaction, and that transaction is related to foreign currency. Now, what is a foreign currency? Foreign currency is a currency of a different country. तो अदर देन द होम करेंसी, आप दूसरे करेंसी में जब डील करते हो तो देन दैट इज नोन एज अ फॉरेन करेंसी। नाउ व्हाट इज द होम करेंसी फॉर ऑल ऑफ अस? रुपीज इज अ होम करेंसी फॉर ऑल ऑफ अस। तो अदर देन रुपीज आप कोई दूसरे करेंसी में, अदर देन रुपीज आप कोई दूसरे करेंसी में डील करते हो, तो that is known as a foreign currency. तो
इट मे बी डॉलर्स, पाउंड्स, यूरोस। आप कोई दूसरे करेंसी के साथ डील करते हो तो दैट इज नोन एज फॉरिन करेंसी। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सबको? प्लीज आंसर। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस, थैंक यू। So when we are dealing with a different foreign, when we are conducting business with a different country's currency, it is known as transaction of foreign currency. तो ये जो चैप्टर है इसमें अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी इज गवर्न्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि फॉरेन करेंसी, अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी इज गवर्न्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 11। तो हमारा ये चैप्टर का सारा रूल्स एंड रेगुलेशन, डू एंड डोंट्स कौन से चैप्टर में, आई मीन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है? इट इज रिलेटेड टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। तो यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक तो इंपोर्ट और दूसरा एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब क्या? इंपोर्ट मतलब जब हम दूसरे कंट्री से, नॉर्मली परचेस एंड सेल मतलब क्या? when we are purchasing something from someone within the country, it is purchase. When we are selling something to within the country is sales. But import and export का word हम कब यूज करते हैं? जब आप दूसरी कंट्री से कुछ खरीद रहे हो तो it is known as import. When you are purchasing something from a different country, then it is outside the borders of the country, it is known as import. तो जब हम import करते हैं तो foreign currency involve हो जाता है। when we are doing import, that is we are purchasing something from outside our country, it is known as import, and foreign currency is involved. And export मतलब क्या? when we are selling something to outside the country, normal sales है, कुछ बेच रहे हैं, लेकिन जब हम कुछ बेचते हैं कंट्री के बाहर, outside the borders of the country, it is known as export. तो एक्सपोर्ट में भी फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होता है, एक्सपोर्ट में भी फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होता है। तो ये चैप्टर में हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें ये चैप्टर में ना जर्नल एंट्रीज रहेगा, तो जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट्स, ये दो चीज हो सकता है इन दिस चैप्टर। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? to know the meaning of foreign currency transactions when we do this chapter। ये चैप्टर में आप हमेशा ध्यान में हमेशा देखोगे that foreign currency transactions are involved। what is a foreign currency? Foreign currency is a currency other than the home currency, and transaction means what? It may be a import or it may be a export, and we have to understand the need for conversion। हम क्या करते हैं? हम नॉर्मली बिजनेस करते हैं, ये हमारा बिजनेस इंपोर्ट का हो सकता है या हमारा बिजनेस एक्सपोर्ट का हो सकता है। तो आफ्टर ऑल जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हमारा प्राइमरी गोल होता है टू मेक प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमने अर्न किया कि नहीं, ये हमें जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, अकाउंट्स को फाइनलाइज करेंगे, तब समझेगा। अकाउंट्स को फाइनलाइज करने के लिए हमें ये अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और हम जब भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो हम फॉरेन करेंसी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हमें ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमारे होम करेंसी में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये इंपोर्ट जो डॉलर्स में हुआ है, सपोज हम यूएस को इंपोर्ट कर रहे हैं या हम यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यूएस का करेंसी है डॉलर्स,
तो हम लोग जब अकाउंट्स यहाँ पे बनाएंगे तो हम डॉलर्स में नहीं बना सकते, तब हमें क्या करना पड़ता है, तब हमें अकाउंट्स हमारा होम करेंसी जो रुपीस है उसमें करना पड़ेगा। तो वो सिचुएशन में हमें डॉलर्स को कन्वर्ट करना पड़ता है रुपीस में, क्योंकि हमारा वी आर डीलिंग इन इंडिया एंड इंडिया का करेंसी है रुपीस। तो उसके लिए हमारे लिए हमें अकाउंट फाइनलाइज करने के लिए सारा इंफॉर्मेशन रुपीस में चाहिए। तो इसलिए वी हैव टू कन्वर्ट आवर फॉरेन करेंसी इनटू आवर कंट्रीज करेंसी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो हम कैश। और एक चीज, फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो रोज चेंज होता है। तो हम लोग अगर हम लोग फॉरेन करेंसी में तो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट, 1 मिनट, हाँ, गिव मी 1 सेकेंड। So it is very important to convert the foreign currency into our own country's currency. Next one, AS11, as I already told you that ये चैप्टर में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 is applicable. So accounting standard 11 is applied, this standard is applied in accounting for transactions entered in foreign currency. जब हम फॉरेन करेंसी से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 एप्लीकेबल होता है। AS 11 मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। Next, this standard does not specify, I'm sorry, this standard does not specify the currency of presentation of financial statement. Normally, an organization prepares its financial statement in currency of होम कंट्री। मतलब क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने 11 ने कुछ भी मैंडेटरी नहीं किया कि हम अकाउंट जो प्रिपेयर करेंगे, हम इंपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्री को, हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्री से, खरीदते हैं फॉरेन कंट्री से और बेचते, या फिर हम बेच सकते हैं फॉरेन कंट्री को, तो नो, तभी हमारा फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व रहता है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 ने ये बोला है कि आपको कन्वर्जन करना है, यहाँ पे फॉरेन करेंसीज को आपको कन्वर्ट करना है आपके कंट्री के होम करेंसी पे। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कौन से करेंसी में प्रेजेंट करना है इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो हम लोग कुछ भी नहीं बताया है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 is silent about presentation of financial statement in what currency. It has not specified कि हमें कौन से करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो इसलिए हम हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे होम कंट्री के करेंसी में करते हैं। मतलब इफ आवर बिजनेस इज सिचुएटेड इन इंडिया तो हम रुपीस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, सारे ट्रांजैक्शंस को हम पहले से ही कन्वर्ट करते हैं रुपीस में, तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में इजी हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग ये चैप्टर में एक स्पेशल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ये चैप्टर में एक स्पेशल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ये अकाउंट का नाम है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। जैसे हम लोग लास्ट सेमेस्टर में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे, वो क्या था, नॉमिनल अकाउंट। सेम वे इन दिस चैप्टर वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट। देखो, एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर रोज चेंज होता है। आज डॉलर का क्या रेट है तो कल डॉलर का रेट अलग रहेगा। आज एवरी मोमेंट स्टॉक एक्सचेंज में डॉलर का रेट
चेंज होते रहेगा, फ्लक्चुएट होते रहेगा। तो हम लोग जो ये इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो फॉरेन करेंसी का आज हमने एक्सपोर्ट किया पर पेमेंट हमने अगले महीने किया, तो क्या फॉरेन करेंसी का रेट, एक्सचेंज रेट मार्केट में सेम रहेगा? आज जब मैंने खरीदा तो $1 इज इक्वल टू 65 रुपीज, बट नेक्स्ट मंथ में जब मैंने इसका पेमेंट किया तो $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज। तो डॉलर का रेट विद रुपीज वो चेंज होता है, तो उससे हमें ये चेंज से हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इज अ नॉमिनल अकाउंट जो हम क्या करते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट क्या बताता है, प्रॉफिट बताता है या लॉस? बिकॉज नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, अगर बिजनेस को लॉस हुआ तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। बिकॉज नॉमिनल अकाउंट का यही रूल है, लॉस हुआ तो एफईएफ को डेबिट, एफईएफ मतलब क्या, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, एफईएफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एफईएफ अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट, लॉस होगा तो एफईएफ अकाउंट को डेबिट करेंगे। और क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, तो इसका जो भी बैलेंस है हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर एंड में इसका जो भी बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एफईएफ अकाउंट का जो भी बैलेंस है इट विल बी ट्रांसफर्ड to profit and loss account, it will be transferred to profit and loss account. Now some important terms which I will read now. एवरेज रेट, एवरेज रेट मतलब क्या, अगर हमें ओपनिंग रेट क्वेश्चन में दिया है, देखो नॉर्मली एक्सचेंज रेट रोज चेंज होता है, एक्सचेंज रेट, डॉलर का एक्सचेंज रेट स्टॉक मार्केट में रोज चेंज होगा। आप देखो एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर, एक्सचेंज रेट ऑफ पाउंड, ये रोज चेंज होता है। तो एवरेज रेट हम लोग क्या करते हैं, रेट्स का एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं तुम्हें पता रहेगा सबको, दैट वी ऐड ऑल द रेट्स एंड डिवाइड बाय, सपोज ओपनिंग रेट है, क्लोजिंग रेट है, आज मॉर्निंग का रेट है और इवनिंग का रेट है, दोनों को ऐड किया और डिवाइड बाय 2 किया तो हमें मिल जाएगा एवरेज रेट। एवरेज रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं ऑफ द एक्सचेंज रेट्स इन द पीरियड, तो हमें एवरेज रेट मिल जाता है। नाउ व्हाट इज द क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग रेट इज द एक्सचेंज रेट एट द बैलेंस शीट डेट। ईयर एंड में हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, तो उस दिन जो रेट रहेगा उसको हम क्लोजिंग रेट बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग रेट। सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट टर्म्स विच में बी आस्क्ड एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है ये। तो नेक्स्ट वन, एक्सचेंज डिफरेंस, अभी मैंने बताया सपोज मैंने जब इंपोर्ट किया तो एक्सचेंज रेट था $1 इक्वल टू 65 रुपीज, और जब मैंने इसका पेमेंट करने गई तो $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज। तो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस हियर, जब मैंने ट्रांजैक्शन किया था तब एक्सचेंज रेट था 65 रुपीज, जब मैं पे करने गई तो एक्सचेंज रेट है 75 रुपीज। सो हाउ मच इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज ऑफ 10 रुपीज। तो एक्सचेंज डिफरेंस is the difference resulting from reporting the same number of unit of a foreign currency in the reporting currency at different exchange rate। तो exchange rate जब हमने
ट्रांजैक्शन प्लेस किया तो एक था, जब हमने पेमेंट किया तो एक्सचेंज रेट डिफरेंट था, तो व्हाट द डिफरेंस रेट between two transactions is known as the exchange difference. तो ये एक्सचेंज डिफरेंस में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है. यू नो देयर आर सो मेनी पीपल जिनका यही बिजनेस है, जो पैसा लगाते रहते हैं, ये एक्सचेंज स्टॉक मार्केट को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं. जब रेट कम दिन में, इन अ पीरियड ऑफ टाइम, इन अ डे, एट सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, यू विल एक्सपीरियंस कि रेट कम हो रहा है और कोई पीरियड में रेट ज्यादा होते हैं. तो कुछ लोग रहते हैं जब वो लोग पूरा टाइम दे आर ऑब्जर्विंग द मार्केट. जब रेट कम हुआ तो लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे और जब रेट ज्यादा होगा तो उसको विड्रॉ करेंगे टू मेक प्रॉफिट. तो देर आर सम पीपल क्लोजली ऑब्जर्व द मार्केट एंड वो लोग ये एक्सचेंज डिफरेंस से इनकम अर्न करते. तब रेट कम रहेगा तो पैसे खरीदेंगे, डॉलर्स को खरीदेंगे जब रेट कम रहेगा, और जब रेट ज्यादा होगा तो डॉलर्स को बेच देंगे. और ये एक्सचेंज रेट से वो लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे. तो what do people do? They purchase the different foreign currencies when the rate is less and they sell the currencies when the rate is higher. So what is the exchange rate? Exchange rate is the ratio for exchange of two currency. जैसे $1 is equal to 70 rupees. This is the exchange rate. मतलब अगर आपको $1 खरीदना है तो आपको 70 रुपीज एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो आपको $1 मिलेगा. सो एक्सचेंज रेट इज द रेशियो फॉर एक्सचेंज ऑफ टू करेंसी. मतलब अगर आपको रुपीस खरीदना है तो आपको 70 रुपीस खरीदना है तो आपको $1 देना पड़ेगा. तो दिस इज द एक्सचेंज ऑफ टू करेंसीज. $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज. मतलब 70 रुपीज अगर आप दोगे तो आपको $1 मिलेगा, और अब अगर आपको 70 रुपीज चाहिए तो आपको $1 देना पड़ेगा. समझ में आया? दैट इज नोन एज द एक्सचेंज रेट. नाउ there is one more thing called fair value. Fair value is the amount for which an asset could be exchanged or liability can be settled. Fair value और market value. आपको कुछ भी चीज खरीदना है, आपको कुछ भी liability settle करना है, तो आपको उसका प्राइस पे करना पड़ेगा. That is fair value. Now, what is reporting currency? Reporting currency is a currency used in presenting the financial statement. मतलब reporting currency किसका करेंसी है? होम कंट्री का जो करेंसी है उसको हम रिपोर्टिंग करेंसी बोलते हैं. होम कंट्री, अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया का जो करेंसी है वो आपका रिपोर्टिंग करेंसी है. अगर आप इंडिया में बिजनेस करते हो तो इंडिया का जो करेंसी है दैट इज योर रिपोर्टिंग करेंसी. अगर आप यूएस में बिजनेस करते हो तो यूएस का जो करेंसी है वो आपका रिपोर्टिंग करेंसी है. देन व्हाट इज द फॉरेन करेंसी? Foreign currency is a currency other than the reporting currency of an enterprise. समझ में आया? अदर देन द फॉरेन करेंसी. देखो, व्हाट इज फॉरेन करेंसी? इज अ करेंसी अदर देन द रिपोर्टिंग करेंसी ऑफ द एंटरप्राइज. मतलब अगर मैं इंडिया में बिजनेस करती हूँ तो लंदन का करेंसी इज फॉरेन करेंसी, यूएस का करेंसी इज फॉरेन करेंसी. तो अदर देन इंडिया जो भी कंट्री का दूसरे कंट्री के करेंसी को मैं फॉरेन करेंसी बोलूंगी. इसके बाद मॉनिटरी आइटम्स क्या है? मॉनिटरी आइटम्स आर द असेट्स एंड लायबिलिटीज टू बी रिसीव्ड or paid in fixed or determinable amount of money. मतलब monetary items are those items which can be easily converted into cash. Monetary items are those items which can be easily convertible into cash. For example, cash, कुछ किसी से पैसा रिसीव करना है, किसी को पे करना है. These are all monetary items. Then what are non-monetary items? Non-monetary items are assets and liabilities
other than monetary items. So non-monetary items are those assets and liabilities other than monetary items such as fixed asset, investment, inventories. Inventories मतलब हमारा रॉ मटेरियल, हमारा स्टॉक, ये सबको हम क्या बोलते हैं, नॉन मॉनिटरी आइटम बोलते हैं. सो दीज are not easily converted into cash. Monetary items are those assets and liabilities which are received or paid in future, fixed amount or determinable amount जो हम पे करने वाले या रिसीव करने वाले, इसको हम क्या बोलते हैं, कैश बोल सकते. कैश, इसका एग्जाम्पल क्या है, कैश, किसी से पैसा रिसीव करना है, रिसीवेबल्स, किसी को पैसा पे करना है, पेएबल्स, डेटर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिटर्स, ऑल आर मॉनिटरी आइटम्स. सो नॉन मॉनिटरी आइटम्स क्या है, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज. अदर देन मॉनिटरी आइटम्स आर नॉन मॉनिटरी आइटम्स. तो इसके साथ हमारा आज का एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ. नेक्स्ट लेक्चर में हम जर्नल एंट्री करेंगे और इसका सम्स करेंगे.